Assalamualaikum. Now we will start with blepharitis. Blepharitis means inflammation of the lid margin. Eyelid margin की inflammation को हम blepharitis कहते हैं. Blepharitis is further divided into anterior blepharitis and posterior blepharitis on the basis of the anterior lamella and the posterior lamella. Because eyelid is divided into anterior lamella and posterior lamella, so the blepharitis, which is the inflammation of eyelid, subacute or chronic inflammation of the eyelid margin जो जिस पर eyelashes वगैरह प्रेजेंट होते हैं और glands वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसका जो inflammation है उसको हम blepharitis कहते हैं. तो due to anterior and posterior lamella, it is further divided into anterior blepharitis and posterior blepharitis. And anterior blepharitis is further divided into the infective blepharitis and non-infective blepharitis. Infective blepharitis means due to some bacteria, that is the staphylococcal species like Staph aureus or Staph epidermidis species. So it's also known as staphylococcal blepharitis, and it can also known as ulcerative blepharitis because of its some signs that after their ulcers can also occur on the lid margin, so it's also known as ulcerated blepharitis. Whereas other is non-infective blepharitis, it does not cause because of the bacteria, and it's also known as squamous blepharitis, and it's also known as seborrheic blepharitis. Seborrheic means oily secretion या waxy secretions in it. Whereas in infective blepharitis there is dryness and the crust will be formed on the lid margin, hard crust will be formed. Whereas in seborrheic there will be dandruff like formation over the eyelid, and there will be oily waxy secretion over the eyelid, due to which there will be gluing of the eyelashes. Now posterior blepharitis, the posterior blepharitis consists only of the Meibomian gland. So in this there will be the dysfunction of the Meibomian gland called as Meibominiatis. Now further we will move on to the ulcerative blepharitis. Ulcerative blepharitis, it is the blepharitis in which there is subacute and chronic infection of the lash follicles, the eyelashes, including the gland of Zeiss and gland of Mole. So they all three, which are present in the anterior lamella, they all three their infection causes the ulcerative blepharitis. Its causes are the Staph aureus or epidermidis, and what are its clinical features? The symptoms with which the patient presents, these are the irritation, itching, lacrimation or gluing of the eyelashes and photophobia. Whereas the signs what the doctors can see that the eyelid margins are the red, they are edematous, edema उनके अंदर हुआ है, रेड है, इन्फ्लेम्ड है, येलो पस उसके अंदर से निकल रही है, येलो पस निकल रही है जिसकी वजह से आई लैशेज जो है वो ड्राइड हो गई हैं, और जो लिड मार्जिन के ऊपर जो स्किन है उसके ऊपर हार्ड क्रस्ट वगैरह बन गई है, लाइक दिस. इट इज़ दी अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस. लाइक over here this we can see the hard crusts. See, ठीक है, when we will remove the hard crust there can be formation of the bleeding ulcers, so that's why it is also known as ulcerative blepharitis. Now what are its complications? As it affects the eyelids, so it will affect the area surrounding it, so it will affect the eyelids, it will affect the conjunctiva, ठीक है, and it will affect its cornea. So what happens to the eyelids? There are different terms for the eyelids. In eyelids there will be trichiasis. In trichiasis there will be the movement of eyelids towards the globe. के मतलब कि ऊपर वाली eyelids जो है वो ऊपर वाली साइड पे होती हैं तो वो नीचे वाली साइड पे मूव कर जाएंगी अंदर आंख के अंदर, और जो नीचे वाली eyelid है वो भी ऊपर वाली साइड पे मूव करके आंख के अंदर. तो दिस इज द trichiasis, which is the misdirection of the eyelashes. Whereas madarosis is the loss of eyelashes, there will be no presence of eyelashes. Then there is the poliosis. Poliosis is the loss of the color of the eyelashes. Eyelashes का color जो है whitening हो जाएगी, color loss हो जाएगा, black color. पोलियोसिस उसको हम कहते हैं. फिर रिकरेंस ऑफ स्टाई एंड क्लेजियन. क्लेजियन दोबारा बन जाएगा. क्लेजियन क्या था हमने बताया था, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड्स, ठीक है ना, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑयली सिक्रीशन. देन टोसिस, देयर विल बी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड. वेयरएज कंजक्टिवा में क्या होगा, जब आई लैशेज उसके अंदर जाएंगे तो कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा. फिर कॉर्निया में क्या होगा,
कॉर्निया के अंदर जो है वहाँ पे कैरेटाइटिस वगैरह, कैथेड्रल अल्सर्स वगैरह हो जाएंगे. नाउ व्हाट्स इट्स ट्रीटमेंट? इट्स ट्रीटमेंट इज़ द लिड हाइजीन. सबसे पहले आईलिड की हाइजीन की जाएगी. हाइजीन कैसे की जाएगी कि उसको डर्टी हैंड्स नहीं लगाने, उसको वाटर से, ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करना है, या फिर 1 ड्रॉप ऑफ बेबी शैम्पू जो है उसको कॉटन बड पे लगा के अपनी आईलैश को उससे मसाज करो और क्लीन करो. तो ये जो है लिड हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ऑफ दिस ब्लेफराइटिस, बिकॉज इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द eyelid margin. तो सबसे पहले ये है. देन वी विल हैव द एंटीबायोटिक्स. वी कैन गिव द एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट्स आर द सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, क्लोरामफेनिकोल. देन वी विल गिव द स्टीरॉयड इंजेक्शंस कैन बी गिवन. टॉपिकल स्टीरॉयड्स कैन बी गिवन विच इज़ द फ्लोरोमेथलॉन and artificial tears, whereas the oral antibiotics can be given which is the tetracycline, doxycycline वगैरह. ठीक है. Now the squamous blepharitis, in this the squamous blepharitis there will be disorder of the gland of Zeiss and mole. Here in ulcerative blepharitis there was also the infection of the large follicle with the gland of Zeiss and mole. In squamous blepharitis there is only the disorder of the Zeiss and mole. And what happens in it, यहाँ पर जो साइंस और सिम्टम्स हैं, इस पे जो सिम्टम्स हैं वो कैसे आएगा, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, वही इरिटेशन जो होगी, इचिंग, इरिटेशन, ग्लोइंग, लैक्रिमेशन होगी. लेकिन उसके साथ जो है स्क्वैमस ब्लेफराइटिस में वी विल हैव द डेपोजिशन ऑफ द वाइटिश मटेरियल ओवर द आई लैशेस. तो उसकी तरह उसमें क्या होगा, डैंड्रफ लाइक मटेरियल आई लैशेस के ऊपर होगा. ऑयली वैक्सी सिक्रीशन की वजह से जो होगा शाइनी वैक्सी अपीयरेंस होगी आई लैशेस की. मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट इरिथीमा हुआ होगा. ठीक है. फिर जो डिस्क्वेमेशन ऑफ द एपिडर्मिस, येलो ग्रीसी फाइन फ्लेक्स की तरह, ये जो है हम देख सकते हैं स्क्वेमस ब्लेफराइटिस है. ठीक है. देखो इसके अंदर हार्ड क्रस्ट बनी हुई है, जबकि इसके अंदर आई लैशेस जो है वो ग्लूई वैक्सी हुई हुई है और डैंड्रफ लाइक अपीयरेंस आती है. ठीक है. इसमें भी कॉम्प्लिकेशन आईलिड की वही है, माडारोसिस. माडारोसिस द लॉस ऑफ आई लैशेस. आई लैशेस गिरती हैं. ट्रेकियासिस, मिसडायरेक्शन हो जाती है आई लैशेस की. पोलियोसिस, आई लैशेस का जो कलर है वो चेंज हो जाता है. कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा जो है उसमें भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है. और फिर उसके ट्रीटमेंट में भी वही हाइजीन, एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स दी जाती हैं. अब जो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है विच इज़ ऑल्सो नोन एज मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन, उसमें क्या होता है, देयर विल बी दी डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड, जिसकी वजह से देयर विल बी द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड, जिसकी वजह से देयर विल बी हाइपर सिक्रीशन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड. मेबोमियन ग्लैंड के अंदर जो ऑयली सिक्रीशन होती है ना वो ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट में है. तो फीचर क्या है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट कहते हैं मेरी बर्निंग सेंसेशन है इन द आई. ठीक है. और साइंस उसमें क्या होते हैं कि वी कैन सी वाइट फ्रॉथी मटेरियल कमिंग, सिक्रीशन कमिंग आउट फ्रॉम द आईलिड मार्जिन एंड देयर इज अ स्मॉल ऑयली ग्लोब्यूल्स. ठीक है. ऑयली ग्लोब्यूल्स इसके अंदर से आ जाते हैं व्हेन द ग्लैंड्स आर मसाज. और इसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन में वही है, कंजक्टिवा में कंजक्टिवाइटिस, कॉर्निया में कैरेटाइटिस, कैथेड्रल अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं. और आईलिड्स में भी, आईलिड्स में इसमें नहीं है क्योंकि ये मेबोमियन ग्लैंड्स है ना, तो ये पोस्टीरियर लेमेला में है. जो स्क्वेमस ब्लेफराइटिस और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस वो इंटीरियर लेमेला पे है, इसीलिए उसमें आईलिड भी जो है उसमें इफ़ेक्ट होती है कॉम्प्लिकेशंस में. जबकि ये जो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है इसके अंदर आईलिड नहीं होगी, कंजक्टिवा और कॉर्निया होंगी. और इट्स ट्रीटमेंट में सेम एज जैसे उनका किया, लिड हाइजीन, एंटीबायोटिक्स एंड स्टीरॉइड्स एंड आर्टिफिशियल टीयर्स कैन बी गिवन. दैट्स ऑल फॉर ब्लेफराइटिस.